Suleiman Khatib Memorial Educational, Cultural and Charitable Trust, Gulbarga, India. مصطفیٰ علی بیگ صاحب، مصطفیٰ علی بیگ صاحب کی خدمات سب سے پہلے میں بتانے کی کوشش کروں گا. آپ اینگلو اردو میں آپ نے شاعری کی ہے اور آپ سرکاری ملازم بھی رہے. ویئر ہاؤس میں مینیجر کی حیثیت سے آپ نے اپنے خدمات انجام دی اور اس سے ہٹ کر کے آپ کو درس و تدریس سے جڑے رہنے کا بھی اتفاق ہوا. آپ ٹیچر بھی رہے اور اس کے بعد آپ نے شاعری میں قدم رکھا اور حضرت سلیمان خطیب کے ہم اسروں میں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیمان خطیب صاحب سے بڑی روچی تھی ہماری. وہ تھوڑے ہمارے بزرگ تھے تھوڑے سے جی، لیکن بہت پیار تھا. مجھ سے تو بڑی بے تکلفی سے علی تلے سے بات کرتے تھے. میں ایک بات دیکھا تھا، ایسی شاعری میں کسی شاعر کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. مطلب یہ کہ اصلاحی پیشکش میں مزاح اور سب سے بڑی چیز فوک جو ہے لوک گیت کا ایلیمنٹ وہ بہت اچھا تھا ان کے پاس. اور پھر سب سے بڑی چیز ہے کہ ایسا ہوتا کوئی بات چیت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں لوگوں کو وہ. اور جب بھی اسٹیج پہ جاتے تھے نا، کلام سناتے تھے تو مجمع کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے، ہنساتے تھے، ان کو سنجیدہ بناتے تھے، آنکھوں میں آنسو لاتے تھے. ایسے نظمیں سناتے تھے. کئی نظمیں ان کی ایسی ہیں جو اصلاحی جہیز پہ ہیں اور فوک اسٹائل میں بھی ہے. مطلب میرا حافظہ ذرا کمزور ہو گیا میری ساری ایج کے حساب سے، آج کل ذرا تھوڑا سا وہ. تو مطلب یہ کہ موڑ چلا تو میں ہلو ہلو، اس میں جو ہے ایک کسان کی کیفیت اور وہ جو ترنم ہے اس کا اسٹائل ہے. واہ واہ کیا بڑے اچھے شاعر تھے صاحب. میں بالکل بابا کے ظاہر کہوں گا کہ ایسا شاعر تو ابھی انڈیا میں نہیں ہے، نہ ورلڈ میں ہے. کیا آپ کو بھی سلیمان خطیب صاحب کے ساتھ مشاعرے پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ جی ہاں، بہت زیادہ ہوا ہے. کیونکہ اور بھی ایک بات ایسی، وہ مشاعروں میں سب سے آخر میں پڑھائے جاتے تھے. اس کے بعد کوئی جمتا نہیں تھا. جی جی، چھا جاتے تھے محفل پہ. جی جی، پورے مجمع کو ہاتھ میں لے لیتے. جی. اب بولیے آپ کون شاعر ہے تھی کم وقتی پکاری جو ان کے پاس سنائیں گے آج. جی جی جی. تو ہم تو شروع میں سناتے تھے. یعنی کوئی فلم چلنے پہلے ریکارڈنگ ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ وہ ہوتا تھا، اس کا وہ سناتے تھے. تو اب مجمع کو ہاتھ میں لیتے. اب بڑے اچھے انداز میں، اور لوگ ان کو اس سے ہٹے نہیں تھے. یہ بڑی خاص بات تھی. مقرر رکھا ہوتا تھا، لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ سنائیں. خطیب صاحب نے کلام پڑھا ہو اور پھر آپ نے بھی کچھ کلام پڑھا ہو اس مشاعرے میں، ایسا کوئی یادگار لمحہ آپ کے ساتھ آپ کے ذہن میں ہے؟ وہ ایسے تو ہر مشاعرہ کا یادگاری ہوتا تھا. جی جی. میں کہتا کوئی پرٹیکولر مشاعرے کو یاد رکھوں. اچھا ٹھیک ہے. جی. مگر وہ میں صحیح کہنا، ہر مشاعرے کو وہ لوٹ لیتے تھے. اچھا جی. مشاعرے کو لوٹ لیتے تھے. تب کیا بات ہے بولے آپ. اب بڑی مزے کی باتیں کرتے تھے. میں جو ہے میں اینگلو اردو شاعری کرتا ہوں کہ اردو شاعری میں انگریزی کے الفاظ استعمال کرتا ہوں تو اس کو اینگلو اردو شاعری کہتے ہیں. تو ایک بار کہنے لگے تو کہ مستو یار یہ تم کر رہے ہو اینگلو انگلش کے، اس کی جگہ اس کے علاوہ اپنا دکنی کے بھی لاؤ. تو میں پھر بولے بہت پسند کیے، بہت خوش ہوئے کہ وہ تھا ساون کی یہ گھٹائیں اللہ پلیز نہ کو، اچھا یہ ہارٹ کی وبائیں اللہ پلیز نہ کو، لڑکے اور لڑکیوں میں ہے فرق کرنا مشکل، لڑکے اور لڑکیوں میں ہے فرق کرنا مشکل، اب کس سے دل لگائیں اللہ پلیز اللہ پلیز نہ کو. واہ واہ واہ. بہت پسند. تو خطیب صاحب کافی پسند کیے آپ کی. جی ہاں جی. اب بہت ہمت افزائی کرتے تھے. بڑی خاص بات تھی. وہ ہمت افزائی کرتے تھے. لکھ برابر لکھ تو اور لکھ اس کے ساتھ. یہ جو لہجہ تھا، یہ جو بات تھی، میں کسی میں نہیں لگا. میں خود گاتا تھا ایک زمانے میں. موٹ چلا تو میں ہلو ہلو، میٹھا میٹھا موٹ کا پانی، سیتا سر کی پاک جوانی، سیتا سر کی پاک جوانی، چمپا چمیلی دونا مروا، چمپا چمیلی دونا مروا، دھان کی بالی ہلو کاٹوں،
हेलो हेलो हम ऐड करते थे उसके अंदर हाई हम लोग ऐड करते थे। अच्छा, मैं और हिमायतुल्लाह साहब शायर थे, जो उन्होंने जन्म सुनाते थे ना तो बीच में आवाजें निकालते। तो ये क्या लहन खतीब साहब का ही था, वो भी ऐसा? उन्हें ज्यादा पढ़ते थे। अच्छा, ऐसा वो सलीस था। अच्छा। हम लोग जो उसको ट्यून बना के हिमायतुल्लाह साहब वो मैं ट्यून बनाते और उसमें आवाजें निकालते थे। अच्छा। वो गंगे रमा 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 ओ गाँव जो पुकारते वो, उसके अलावा जो है ना वो हाई वो मारा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पूरा एक गांव का एक माहौल पैदा करते थे कि वाकई में एक किसान मोट चला रहा है। जी और बड़ा मजा आता था। और बड़ी तवील नज़म में एक ही बंद याद रहा, बड़ी तवील नज़म में सब बना के लूट लेते थे, समझ में वाह वाह वाह, लूट लेते थे। अच्छा अच्छा, वाह वाह, ये खास खतीब साहब का ही था। अल्लाह उनको मग़फ़िरत तो मग़फ़िरत है तो कह सकते हैं। जी जी। हजरत सुलेमान खतीब, जिन्हें शहंशाह मिज़ाहिया शायरी अगर कहा जाए तो कोई बुरा नहीं होगा, तो मैं तो आपकी शख्सियत के बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं तकरीबन 65 साल बॉम्बे में रहा, तो पहली मरतबा उनकी शायरी सुनने का इत्तेफाक बॉम्बे में ही हुआ। जी जी। वहाँ एक क्या नाम इंडियन एयर इंडिया के जो कॉलोनी है जी, वहाँ पर उनके चाहने वाले रहते थे। जी, तो वो उस वक्त वहाँ आते थे, अल्टरनेट ईयर से आते थे। जी जी। तो इत्तेफाक से पहली मरतबा मुझे वहाँ सुनने का इत्तेफाक हुआ। और उस जमाने में मैं भी तुकबंदी किया करता था। अच्छा अच्छा, बाज़ाब्ता शायरी में अच्छा अच्छा अच्छा, तुकबंदी, किसी के 2 शेर लेके उसकी तरफ जी जी, वो करता था, गिरा गिरा लगाता था। तो वहाँ मैंने उनका वो पहला नज़म मैंने उनकी सुनी। जी जी, बेवा की फरियाद। बेवा की फरियाद। सर, क्या आपको उनके साथ मुशायरे भी पढ़ने का कभी इत्तेफाक हुआ है? कभी नहीं। जी जी, क्योंकि एज गैप या बहुत ज्यादा एज गैप नहीं, मैं जो है ना उस वक्त मुब्तदी था, यानी बिगिनर था। जी जी, और उस वक्त वो चोटी पे थे। अच्छा सर, ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि उनके तख्लीक़ात को तो जाहिर बात है आपने पढ़ा होगा, और उनके शायरीन में से आपका भी शुमार किया जाता है, या फिर उनको आप उनके कलाम को भी आपने कहीं पेश किया सर? हाँ, एक 2 मरतबा ऐसा हुआ है, मुझे वो शहर याद नहीं है, ये उनके साहबजादे बेहतर जानते हैं। जी। तो वो बेवा की फरियाद नाम के 3-4 शेर थे। जी जी। रोज लड़ लड़ को जान खा खा को, अच्छा जंगल में सो गए आंखों। मुंडी काटी को पहले मरना था, लेकिन मुट्ठी में जान बैठी है। ऐसा मरना भी कैसा मरना थी, घर में बेटी जवान बैठी। क्या बात है, ऐसा मरना भी कैसा मरना, घर में बेटी जवान बैठी है। कितने लोगों के पावा पड़ पड़ को, घर से मैयत को मैं उठाई है। जीना मरना तुम्हारा मरने का, आज फूला उधार लाई हूँ। आखिरी शेर पर तो मेरी हिचकी बन गई थी, अब भी मेरे हाथ में कांटे आते हैं। फरमाते हैं, इतना एहसान हमको करना था, तनख्वाह लेने के बाद। अल्लाह मग़फ़िरत करे। बहुत अच्छा उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। हमें उनके बाद मैं समझता हूँ दकनी में, उसके बाद उनके जैसा शायर आखिर थे, हरफ आखिर थे दकनी ज़बान। उनसे पेशवा और भी बहुत से थे, नज़ीर अहमद दैखानी, एजाज हुसैन खट्टा। लेकिन ये शुद्ध हिंदी में जी जो रुलात हंसाते हंसाते जो ऐसी चुमटी लेते थे कि आदमी परेशान हो जाता था। क्या बात है, वाह वाह, सिर्फ निज़ा हो वो काम नहीं देते, या सिर्फ तंज हो वो भी काम नहीं देते। तंज और निज़ा मिलकर चलते हैं। जी, तो मेरा मतलब ये है कि आप निज़ाम में काम करें, लेकिन कुछ उसमें ऐसी बात पैदा करें कि लोग आदमी सोचते हुए जाएं कि यार ये हंसाते हंसाते भी कोई अच्छा पैगाम दिया। जी। मानवा शुगुफा, जो कोई अदब की दुनिया में तारुफ का मोहताज नहीं है, रिसाला काफी अरसे दराज से ये अपने उर्दू की अदबी खिदमत अंजाम देते आ रहा है, और उसके रूहे रवां हैं मुस्तफा कमाल साहब, और बड़ी ही सहाफत के मैदान की खदआवर शख्सियतों में आपका शुमार किया जाता है। तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे नाजरीन, सुलेमान खतीब की शख्सियत और आपके फन के बारे में। सुलेमान खतीब साहब से हमारा बड़ा पुराना रब्ता था, जाहिर है जी, क्योंकि खतीब साहब हमसे पहले से, शगुफा से पहले से लिखते रहे हैं। अच्छा। और दरअसल मेरा रब्त उनसे जो है जिंदा दिलाने हैदराबाद की तवज्जो। जी।
जिंदा दिलाने हैदराबाद का इदारा 1962 में कायम हुआ। जी जी। और 62 से 65 तक रियासती सतह पर आंध्र प्रदेश में जी ये मुशायरे हुआ करते थे, जी, जिसमें सुलेमान खतीब शरीक रहे हैं। जी। उनकी सदारत में भी मुशायरे हुए हैं। जी। और आहिस्ता आहिस्ता इसकी बड़ी शोहरत हुई। जी जी। खतीब साहब से पहले कुछ और लोगों ने भी दक्कनी में शायरी की। मैं उसी जिंदा दिलाने हैदराबाद के मुशायरे में उनसे मेरी मुलाकात की और वो सुनने के बाद ज़ाहिर है बड़ा मुतासिर हुआ मैं। जी। और मुझे दक्कनी उर्दू से कुछ कदर दिलचस्पी भी रही है। और चुनाचे मैं जब एमए का तालिब इल्म था जामिया उस्मानिया में, तो एक बहुत ही शानदार दक्कनी अदब नंबर शाये हुआ था। अच्छा। जिसमें दक्कनी अदब की तमाम असनाफ पर मुहक्किकीन से माहिरीन से मज़ामीन लिखवाए गए थे। और दक्कनी के जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े माहिर थे शिमाली हिंद में मसूद हुसैन खान साहब, प्रोफेसर मसूद हुसैन खान, वो सदर शोबा थे जामिया उस्मानिया, वो उसके निगरान थे। तो ये जो नंबर शाये हुआ, तो उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने एक उन्वान दिया जदीद दक्कनी का जी, और उन तमाम शायरों के कलाम को इर्जा करके उसमें मैं शाये किया था। अच्छा। तो वो जो ज़मीमा था उस पर्चे का, जी जो खुसूसी नंबर था, जी, तो उसमें ये जो नाम मैं गिना रहा हूँ, जी, इन सब का कलाम शामिल है। अच्छा अच्छा। तो सुलेमान खतीब के साथ साथ उसी दौर में सरवर डंडा भी थे। अच्छा। और सच बात तो यह है कि सरवर डंडा काफी मशहूर थे। अच्छा। और शोहरत के हिसाब से आप देखें तो नजीर दैखानी को वो शोहरत नहीं मिली थी, इजाज खट्टा को नहीं मिली थी, जैसी शोहरत के सरवर डंडा को। सरवर डंडा को। जी जी। और वो दौर ऐसा था कि आए दिन मुशायरे होते थे, जी, छोटे पैमाने के भी और बड़े बड़े मुशायरे। और उन मुशायरों में डंडा को सुनने के लिए लोग दीवानावार चले आते थे। अच्छा जी। और एक से एक अलग अलग का शायर मौजूद। अच्छा। तो कभी कभी ये बातें होने लगी कि उसी दौर में ये तय हुआ कि भाई मिजाज के जो शायर हैं उनको आखिर में सुना दिया जाए। अच्छा, जब तय हुई ये बात। अच्छा। तो एक रिवायत बन गई। जी जी। और ये डंडा ने दरअसल ये वो शुरुआत की। जी हाँ। अच्छा। डंडा के बाद फिर आप सुलेमान खतीब का जी, नाम जी, देखते जी। तो फिर बाद में हिमायतुल्लाह आए। जी जी। फिर अशरफ मेरी हैं। अच्छा। ये खालिद दक्कनी के शायर। खालिद दक्कनी। ऐसे बहुत से शायर हैं जो अपनी जबान को जरा सा कहीं दक्कनी लफ्ज के साथ मिलाकर कुछ का कुछ बना देते हैं, लेकिन खालिद दक्कनी जो हैं जी, वो यही शायर हैं। अच्छा। जिनके पास कभी आपको लफ्जों में दो तरह के अंदाज नहीं मिलेंगे। जी जी। एक ही ऐसा मालूम होता है कि इनकी एक फितरी जबान है, जबान है, जी, जैसा बोलते हैं वैसे ही वो लिखते हैं। जी जी। जरूरत के तहत, जरूरत शेरी के तहत या महज मिजाज पैदा करने के लिए दक्कनी नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि बिल्कुल जैसे इनकी अपनी जबान है और उसी में वो अपनी माफी जमीर को पेश करना चाहते, वो खूबी इन लोगों में थी। सर, मैं जानना चाहूंगा कि हजरत सुलेमान खतीब की पर्टिकुलर सुलेमान खतीब की शायरी के बारे में, उनकी शायरी की खुसूसियत के बारे में कुछ हमारे नाज़रीन के लिए फरमाएं। हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि मैं जो आपको सिलसिला बताया, जी जी जी, बहुत अच्छा किया। उसमें डंडा ने बहुत शोहरत हासिल की, मानना पड़ता है जी जी। लेकिन फिर सुलेमान खतीब शोहरत की उस मंजिल से भी और ऊंचा गए। हाँ, एक तरफ जी। और दूसरी अहम बात यह है कि सुलेमान खतीब सिर्फ शायर नहीं थे जी, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि दक्कनियात पर और दक्कनी सरमाए पर और दक्कनी जबान के जो लफ्ज हैं उनके बेहतर इस्तेमाल और उनके मुहावरे, उनका रोजमर्रा, उस पर उनकी एक माहिर लिसान की तरह नजर थी, गहरी नजर थी। दूसरे शोरा के यहाँ ये बात नहीं मिलेगी। तो इन्होंने पहले तो अपनी अवाइल उम्र में ही लोकगीत जमा किए। अच्छा। पूरे इलाके से इधर उधर घूम फिर कर देहात में लोगों से गुफ्तगू करके लोकगीत जमा किया। और फिर उसके मिजाज को समझा। और फिर जब उन्होंने शेर कहे तो ऐसा महसूस हुआ कि ये सारे शेर उसी लोकगीतों के बतन से जो पैदा हुए। वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी ये खूबी उनके पास थी। बड़ी दूसरों ने इस तरह से जबान लिसानी जो उसका पसमंजर है जिनके पास, खतीब साहब के पास, वो दूसरे शायरों के यहाँ उतना नहीं मिलता। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि खतीब साहब ने जो मेहनत की अपनी शायरी में, उन्होंने अमली तौर पर पहले ही मुशाहिदा किया कि लोक गीतों का उन्होंने जायजा लिया, फिर आकर के वो तख्लीक करने बैठ गए। बिल्कुल, पहले वो संजय शायर थे, संजय शायरी करते थे। अच्छा, अच्छी खासी शायरी थी उनकी। अच्छा। फिर बाद में उन्होंने अपना चेंज कर दिया और फिर इतने मकबूल हुए कि नई चीजें उन्होंने दी। दूसरे शोरा में इनमें एक फर्क तो ये है, जहां तक उनकी शोहरत है उनकी 2-3 खूबियां हैं जी। एक तो ड्रामाइयत है, ड्रामा बिल्कुल एक ड्रामा सा वो पैदा करते हैं और एक क्लाइमेक्स लाते हैं जी। और कहानी को लेके चलते हैं, उरूज पे जाती है जी। और एक खास अंदाज में नज़्म खत्म होती है और हंसाते हंसाते अक्सर फिर रुलाते। तो वो जो एंड है वो भी इनका अपना एक यूनिक अंदाज था।
کہ بات کو کہیں سے شروع کیا، مذاق سے شروع کیا، لیکن رونا نہیں چھوڑا. تو یہ انداز بھی ان کا تھا. یہ صرف خطیب صاحب کے یہاں ہی ملتا ہے؟ ہاں بالکل بالکل. نریندر رائے نرین صاحب یہ رہتے ہیں حیدرآباد کے، اور انہوں نے ہندی میں، اردو میں اور خاص طور پہ دکنی لب و لہجے میں بھی آپ نے شاعری کی ہے. تقریباً آپ کے 10 ایسے مجموعہ کلام چھپ کر منظر عام پر آ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ پیشے سے آرٹسٹ ہیں، اور آپ سلیمان خطیب صاحب کے بڑے اچھے شائقین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. بچپن میں اردو پیپروں میں خطیب صاحب کی کچھ نظمیں چھپتی تھی. جی جی. جو اردو میں لکھتا پڑھتا ہوں بچپن سے. جی جی. تو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اردو پڑھنے کی وجہ سے مجھے ان کا کلام پڑھنے کا ایک اتفاق ہوا، اور تو میں بہت متاثر ہوتا تھا، کیونکہ ان کے پاس جو نظمیں ہوتی تھی پڑھ کر ایسا لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے درد کو اجاگر کر رہے ہیں، اور یہ کہیں ایسا لگتا تھا کہ یہ ہماری اپنی پیڑا ہے، سماج کی پیڑا ہے. تو ہنساتے ہنساتے وہ اس طرح سے رلاتے تھے، تو میں بہت متاثر ہوا، اور میں سوچتا تھا کہ کبھی میں بھی ایسا کچھ کروں گا کہ ہلکا پھلکا مذاق کرنے کے بجائے میں کوشش کروں گا کہ اپنی نظموں میں بھی ایسی کچھ بات پیدا کروں. جی جی. تو وہ اس کے بعد تو وہ چیزیں خیر تھوڑی سی رک گئی. میں پھر ہندی اردو میں غزلیں گیت وغیرہ لکھنا شروع کیا. پھر رہ کر وہ بات مجھے من میں ٹیستی رہتی تھی، کسی دل کے کونے میں وہ بات رہ گئی تھی. تو پھر وہ میں نے تقریباً 20 سال پہلے میں نے لکھنا شروع کیا. میں نے کہا نہیں میں اس کو آزماؤں گا. اس سمے تک سمجھیے کہ ایک انوبھو میں لیتا رہا مزاح طنز کا کس طرح سے اس کو یہ کیا جائے. اس کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا. جب میں لکھ کر کے منچوں پر پڑھنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ یہ واقعی، اور خیر وہ تو بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، لوگوں نے کہا آپ کی شاعری میں کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ سلیمان خطیب کی یاد دلا دیتی ہے وہ آپ کی شاعری. تو مجھے ہمت بندی، اور میں اسی بات کو لے کر کے ہمیشہ سوچتا رہا کہ یہ جو سٹینڈرڈ ہے وہ گرنا نہیں چاہیے. جب ایک اتنے بڑے شاعر سے لوگوں نے کہا کہ کچھ جھلک دکھائی دیتی ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس کو نبھانے کی پوری کوشش کروں گا، اور آج تک یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس بات کو نبھا پاؤں. اور وہ مالک کی مہربانی ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ لوگ اس چیز کو جو ہے کافی پسند کرتے ہیں، اور میری بھی ہمت افزائی ہوتی ہے. اور اب تو یہ عالم ہے کہ ایک میگزین آتا ہندی ملاپ حیدرآباد سے، سنڈے ایک میگزین نکلتا ملاپ مزہ، اس میں کمپلسری 3 سال سے پہلا پیج میری دکنی کی نظم چھپتی ہے. کیا بات ہے، دکنی کی نظم، اور اس سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں اور بار بار مجھے فون کرتے ہیں. جی واہ. اور ایک بات میں بتاؤں، ایک ہندی میگزین کو میں نے لگاتار خطیب صاحب کی بک لے کر کے اردو سے ہندی ترجمہ کر کے میں وہ میگزین کو برابر بھیجتا رہا. کیا بات ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی شاعری سے میں کتنا متاثر ہوں. تو ان کا جو ہے کلام میں ہندی میں لکھ کر کے اس میگزین کو دیتا تھا کہ تاکہ ہندی کے لوگ بھی اس کو سمجھ سکیں اور ان سے واقف ہو. تو بس ان کے پرتی یہ ایک میری تھوڑی سی کوشش تھی کہ میں کچھ تھوڑا بہت ہندی کے لوگوں تک وہ بات کو پہنچا رہا ہوں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اسی دکنی کے لیے مجھے ایک بہت بڑا ایوارڈ ہوتا ہے یدھ ویر فاؤنڈیشن ایوارڈ ہمارے یہاں، جو بہت بڑے لوگوں کو دیا گیا ہے. جیسے منموہن سنگھ ہے، اور بڑے رائٹر ہیں، پدم شری جگدیش متل ہیں، پنڈت جسراج جی ہیں. تو میں بھی ایک ناچیز اس میں شامل ہوں کہ مجھے بھی وہ یدھ ویر فاؤنڈیشن ایوارڈ خاص کر دکنی کی سیوا کرنے کے لیے مجھے دیا گیا ہے. اور اب ہندی کے لوگوں میں دکنی جہاں تک ہو سکے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہندی میں پورے دکنی کا پرچار جو ہے کر رہا ہوں فی الحال اس سمے، اور بس لگاتار دکنی لکھتا ہوں. بچپن میں بہت پڑھا تھا وہ ایک نظم کے کچھ شعر مجھے ان کی شروعات میں، تجھے معلوم ہے میں کتنا خوشی سے آیا ہوں، مجھ کو آتے سو بھی نہیں آتے سو گانے گایا ہوں، آدھی بریانی بھی ہوٹل میں دبا کو کھایا ہوں، دیکھ جی وقت میں تیرے واسطے کیا کیا لایا ہوں. یہ بہت شاید میں کچھ 60 سال پہلے میں نے یہ پڑھی تھی تو مجھے کچھ یاد رہ گیا. ایسی تو ان کی اتنی رچنائیں ہیں کہ بہت زیادہ ہیں، ہم کہاں تک ان کا بخان کر نہیں سکتے ہم.
जो भी एक निकाल करके पढ़ो उसमें कुछ न कुछ बात कुछ मैसेज है, समझे। तो हम भी ये कोशिश करते हैं कि कुछ इसी तरह से मैसेज जो है हंसते हंसते लोगों को जो है पहुंचाया जाए, ये मेरी कोशिश होती है। मुनव्वर अली मुख्तसर साहब, आपका खास मैदान है निजामत। जी, मुल्की सतह पर भी आप काफी मुशायरों में आपने निजामत की है, और खुसूसी तौर पे हैदराबाद के चाहे वो मुशायरे हों या कोई मिजाहिया महफिल हो, उसमें आप बखूबी निजामत के फराइज अंजाम देते आ रहे हैं। मैं सुलेमान खतीब साहब के मेमोरियल कल्चरल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा कर्नाटक का बेहद मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस सुलेमान खतीब यादगार मिज़ाहिया मुशायरे की निजामत के लिए चुना है। हम लोग सरदार असर साहब, गौस खामखा साहब और मुस्तफ़ा अली बेग, डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा कमाल, मुश्तबा हुसैन साहब और बॉम्बे से सिराज शोलापुरी, बेंगलुरु से दुर्गा दत्त पांडे और हैदराबाद से हिंदी और दक्षिणी जबान की मशहूर शायर नरेंद्र राय, ये हम सभी लोग ये खतीब साहब की मोहब्बत में यहाँ आए हुए हैं। और हमारा मकसद भी है कि उर्दू जबान की तरक्की व तरवीज के साथ साथ दक्कनी जबान के फरोग के लिए भी हम लोग कोशा हैं, और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और मैं तो दुआ करूंगा कि जिस तरह से सुलेमान खतीब साहब के अफराद खानदान या उनकी साहिबजादी साहिबजादगान जो एक बैन अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर के फर्जंदान और साहिबजादी हैं, और जिस खुशबू खुशू के साथ और जिस इनेमात के साथ वो अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए वो मुख्तलिफ दक्कनी मज़ाहिया मुशायरे या फिर खालिस मज़ाहिया मुशायरे, फिर नसरी मुख्तलिफ इजलासों का जो इनेकाद अमल में लाकर यहाँ गुलबर्गा कर्नाटक, इसके अलावा बैरून मुल्क भी, खास करके अमेरिका वगैरह में भी ये हजरात बहुत मेहनत और बहुत काम कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि हर शायर के लड़के और लड़कियों को अल्लाह ऐसी तौफीक दे कि वो अपने उर्दू अदब और अपने वालिदैन की खिदमत का ये एक जरिया है, भले वो इस दुनिया में रहे न रहे, इनकी उनकी अदम मौजूदगी में भी अगर कोई औलाद अपने वालिद के दोस्त अहबाब, वालिद के बनाए हुए मशीन को आगे बढ़ा रही है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुश आइंदा बात है। और मैं फिर एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे काबिल समझा। साहब जी, मैं तो खतीब साहब को बचपन में सुना हूँ, और 78 तक, जब तक का उनका इंतकाल नहीं हुआ था, मुझे सुनने का मौका मिला। और मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे शायर पैदा होते हैं दुनिया में जो अच्छा सिर्फ ये लेबल लगाना कि सुलेमान खतीब साहब सिर्फ दक्कनी जबान नहीं, सलीस जबान में भी बहुत अच्छी शायरी करते थे। चुनाचे मैसेज ओरिएंटेड शायरी यानी कि सटायर, मतलब ये कि एक मैसेज देते थे अपनी दक्कनी शायरी के बाद सलीस जबान में। जैसे उन्होंने वो इस्म नवेसी और रिश्ते के सिलसिले में बेटियों से मुताल्लिक़ उन्होंने वालिदैन को तलक़ीन की है सलीस जबान में। खूब सोचो समझ के बेटी दो, काट खाने को सांप आते हैं, रूप भरकर कभी फरिश्तों का, घर बसाने को सांप आते हैं। अच्छे जेवर में, अच्छे कपड़ों में, अच्छी कारों में सांप आते हैं। गुल महकते हैं जब भी गुलशन में, उन बहारों में सांप आते हैं। खूब सोचो समझ के बेटी दो। ये बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने जो है लोगों तक की बात पहुंचाई है कि लोग तो बड़े नरम तरीके से आते हैं, लेकिन खसलत उनकी सांप की रहती है। जिस तरह सांप बिल में दाखिल होने से पहले अपने जिस्म को सुकड़ लेता है और फिर फौरन अपना मुंह ऊपर की तरफ कर देता है, बिल की तरफ, बाद में दुम को खींचता है, तो इंसान की कैफियत भी रिश्ते के वक्त तो बड़ी अच्छी बातें करेंगे, जब शादी वादी तय हो जाए तो फिर ये सारी खसलतें उसमें आती है। तो चुनाचे सुलेमान खतीब साहब ने इस बात को बड़े ही गहरे और बड़े ही दिलचस्प और मैं समझता हूँ कि सबखामोज अंदाज में उन्होंने पेश किया। और ये बात है कि काफी अर्सा पहले उन्होंने ये बात कही, लेकिन ये फी जमाना हर जमाने में इस चीज की जरूरत है। दुर्गा दत्त पांडे साहब,
दुर्गा दत्त पांडे साहब का ताल्लुक ऐसे तो हैदराबाद से है, लेकिन हाल मुकीम वो फिलहाल बेंगलोर में है। तो आपको शुरू से ही उर्दू अदब से लगाव रहा, आप उर्दू और दक्कनी में और खासतौर पे राजस्थानी में भी आप शायरी करते हैं और बड़ी दिलचस्पी है आपको मिजाहिया शायरी में। और ये जो अवार्ड का जो मामला है जो आपको सदर हिंद की तरफ से अता किया गया है, इसका क्या ये है, ये बताइए। उसमें मैं अकेला ही नहीं था, आदरणीय मेरे बड़े भाई राय साहब भी थे। हम गए थे वहाँ, राष्ट्रपति नीलम, तो उन्होंने वो चाह रहे थे कि हैदराबाद के कुछ कवियों और शायरों को सुने, तो उसमें हम लोग भी चुने गए थे। तो आप लोगों को ये एहसास मिला, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने तारीफ भी की कि भाई थोड़े छोटे में बड़ी बात कहते हैं। तो हमारे नाजरीन के लिए कुछ आपके अपने तख्लीकात, कुछ आप अपने अशार बताइए। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आदरणीय सुलेमान खतीब साहब से हटके कहीं न कहीं किसी भी कवि शायर में वो कैसे भी वो उनसे प्रभावित है, जाने अनजाने, चाहे वो उनको देखा या सुना न होगा, लेकिन वो अनजाने जाने वो बराबर वो उन्हीं की राह पर चल रहा है। कोई मुझ जैसा चलने की कोशिश कर रहा है। तो आप मानते हैं कि सुलेमान खतीब साहब की शायरी में वो दम है कि हर कोई उनका फॉलोअर है या उनके कुछ चीजों को फॉलो करता है, ये आप मान के चलते? बिल्कुल फॉलो करता है। उन्होंने हर विषय पर हर उस पर अपनी नज़्में और अपनी शायरी कही है, तो उनसे हटकर नया लिखना बहुत ही मुश्किल है। तो बहुत कुछ हो सकता है कि वो जिस राह पर चले कुछ कदम हम चल रहे हैं। वाह वाह वाह। तो आप अपने एक कुछ शेर सुनाइए। मैं हैदराबादी उसमें दो सुनाता हूँ। मेरी एक प्रसिद्ध रचना है कि मर्दा रवायत को तोड़ रही, बालियां पहन रही, चोटियां छोड़ रही। वाह वाह वाह। मर्दा रवायत को तोड़ रही, बालियां पहन रही, चोटियां छोड़ रही, नमस्ते को हाय बोल रही, खुदाफिज को बाय बोल रही। वाह 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 वाह। मर्दा रवायत को तोड़ रही, बालियां पहन रही, चोटियां छोड़ रही, नमस्ते को हाय बोल रही, खुदाफिज को बाय बोल रही, भूल रही हिंदी उर्दू भाषा, ये क्या हो रहा है पाशा। वाह वाह वाह। भूल रही हिंदी उर्दू भाषा, ये क्या हो रहा है पाशा। और आखिरी एक संदेश देना चाहता हूँ कि मंदिरा मस्जिदा बनाते जा रहे हैं, खुलूस मोहब्बत मिटाते जा रहे हैं। क्या बात है सर। मंदिरा मस्जिदा बनाते जा रही, खुलूस मोहब्बत मिटाते जा रही, रोज झगड़े लगाते जा रही, चंदे तगड़े खाते जा रही, राम रहीम बन रही तमाशा, ये क्या हो रहा है पाशा। चार अंतिम हिंदी में उनके लिए मैं कहना चाहूंगा। खतीब साहब के बारे में आप कुछ अशार कहना चाह रहे हैं? सुनिए। बहुत से लोग बस अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, बहुत से लोग बस अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, दिवाली हो के होली हो सदा मातम मनाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत से लोग बस अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, दिवाली हो के होली हो सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं का नाम लेती है हरदम, जो अपनी पीड़ाएं भूल के जग को हंसाते हैं। क्या बात है। जो अपनी पीड़ाएं भूल के जग को हंसाते हैं। और खतीब साहब इसी तरह के इंसान थे, बरिश्ता थे। वाह वाह वाह। सिराज शोलापुरी साहब, वैसे सिराज शोलापुरी साहब बैक वक्त संजीदा और मिजाहिया शायरी करते हैं। आपने गजलें और नज़में भी कहे हैं और आपका एक मजमूए कलाम तीर नीमकश सन 2006 में शाये होकर मंजर आम पर आ चुका है। आज से तकरीबन 15-16 साल पहले शायरी की शुरुआत तो संजीदा शायरी से हुई जी। संजीदा शेर कहा करते थे जी, लेकिन मिजाज में थोड़ा सा मिजाज की हिस्स है जी जी। और ये मेरे उस्ताद ने मुझे बताया जी कि आप मिजाज शायरी करो तो और भी निखार आएगा जी। कौन है आपके उस्ताद? बशीर परवाज शोलापुरी जी जी जी। तो वैसे मेरे मुताले में अक्सर बेशतर केवड़े का बन रहा करता था। केवड़े का बन सुलेमान खतीब साहब का शेर मजबूआ है जी। वो पढ़ते पढ़ते तंजो मिजाज के शेर कहने का भी हुनर आ गया जी जी। और फिर उस वक्त से तंजो मिजाज पर ज्यादा जोर देने लगा जी। वैसे संजीदा शेर तो कहती है लेकिन तंजो मिजाज के शेर कहने पर ज्यादा जोर देने लगे। और आज कुलीन मुशायरों में, बड़े बड़े मुशायरों में तंजो मिजाज की शायर की हैसियत से ही बुलाया जाता हूँ और वही तंजो मिजाज की शायरी पढ़ता हूँ। और जो संजीदा शायरी है वो नशिस्तों में पढ़ता हूँ या किताब के। आपके कुछ ऐसे मिजाहिया कुछ शेर आप सुनाना चाहेंगे एक दो हमारे नाजरीन के लिए? जब एक 4 मिसरे जो हमारा प्रॉब्लम भी है कि एक जाति का देश में झंडा धरने वाला मैच कहते जी। एक जाति का देश में झंडा धरने वाला मैच कहते, पुलिस जब भी फायर करी तो मरने वाला मैच कहते। वाह वाह वाह। एक जाति का देश में झंडा धरने वाला मैच कहते, पुलिस जब भी फायर करी तो मरने वाला मैच कहते, ये कैसा कानून हमारे देश में आया नहीं मालूम, बम के धमाके कहीं भी होंदे करने वाला मैच कहते। क्या बात है सिराज साहब, क्या बात है। वाह वाह वाह। सुलेमान खतीब साहब की एक एक नज्म जो है
मुतासिर करती है। जी जी। मैंने कौड़े का कई बार पढ़ा है, पढ़ता ही रहता हूँ। उसमें आप सास बहू देखिए या फिर छोरा छोरी देखिए, और फिर ईद एक नज्म है उनकी। ऐसी सारी नज़में जो है वो दिल को छू लेने वाली हैं। सुलेमान खतीब साहब एक तंजो मिजाज के ऐसे सायादार शजर हैं कि जिनकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी और बहुत मजबूत है। बहुत जमीन से जुड़े हुए शायर हैं। दिल बहलाने की शायरी उनकी कहीं नहीं है। एक मैसेज, एक पैगाम और एक जबरदस्त तंज, और उनके मिजाज में इतनी, जिसे कहेंगे कि फूलों की सौंधी खुशबू है। इतना अच्छा कलाम उनका है। तंज भी वो होना चाहिए, मिजाज भी वो होना चाहिए, और पैगाम भी वो होना चाहिए। और उसी कलाम को पढ़ करके हमारे पास ये शौक पैदा हुआ कि हम भी इस तरह की शायरी करें। और मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि उसी नक्शे कदम पर मैं चल रहा हूँ। वाह 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 वाह। वैसे तो इनका नाम है सरदार मोहम्मद खान साहब, लेकिन अदबी नाम है सरदार असर साहब। ये हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं और जिंदा दिलान के ज्वाइंट सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। और आपने हम नात के अलावा नज़में भी लिखी हैं, गज़ल भी लिखी है, और आपने तंज़ व मिज़ाह पर भी काफ़ी तहक़ीक़ात लिखे हैं। जहाँ तक कि मेरी अपनी शायरी की इब्तिदा का ताल्लुक़ है, वो मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं 15-20 साल से करीब शेर कहता हूँ, और अल्लाह के फजल से अच्छे अच्छे असातिज़ा के साथ उनकी सोहबतें मिली, और उनके साथ शेर कहने और शेर समझने के मुझे मौके मिलते रहे, जिनमें सबसे पहले कवि साहब थे, जिनसे मैंने इब्तिदाई तालीम शेर व अदब के बारे में हासिल की। उसके बाद बाज़ाब्ता जनाब तालिब खुनमेरी साहब ने मुझे तंज़ो मिज़ाह की तरफ राग़िब किया, और पहली बार 2003 के सालाना मुशायरे में मुझे मदो किया और शेर सुनाने के लिए कहा, और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से मेरा ये तंज़ो मिज़ाह का सफर जारी रहा और आज तक भी कामयाबी के साथ जारी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैं संजीदा शायरी, तंज़ो मिज़ाह, हमदनात सब कहता हूँ, लेकिन तंज़ो मिज़ाह में जब से मैंने सुलेमान खतीब साहब के बारे में सुना और सुलेमान खतीब साहब को पढ़ा, और इंटरनेट पर, यूट्यूब पर जब भी सुलेमान खतीब साहब को देखा, तो मेरे दिल में एक आरज़ू, एक तमन्ना ऐसी उभरने लगी कि मैं भी कुछ ऐसी शायरी करूं जिसमें कि कोई न सिर्फ हंसी का या मजाक का पहलू हो, बल्कि मैं उसके साथ साथ उसमें तंज के नश्तर भी रखूं और लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर दूं। मेरा मतलब यह है कि उसमें आप खालिस इस्लाही शायरी करना चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने एक फन अपनाया था कि हंसाते हंसाते वो शुरू करते और अपनी नज़म के अख्तिताम पर लोग अख्तबार हो जाते, तो आप इस रविश पर चलना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, जो है यही सही रविश है। इसीलिए कि किसी ने क्या खूब कहा था कि जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है, दो आंखों में एक से हंसना एक से रोना है। वाह वाह वाह। तो मैं समझता हूँ कि जैसे सुलेमान खतीब साहब ने किया, हमको भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। तंज़ो मिज़ाह भी है तो ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई ना कोई हर शेर में पैगाम हो, और जिंदगी में जो छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हमारी जिंदगी बेहतर बन सकती है, जिंदगी में खुशियां आ सकती हैं, उनको चुनकर एक सरीखे से अपने अंदाज में अपने शेरों में पेश करना, अब इसी बात की मैं कोशिश करता रहता हूँ। Suleiman Khatib Memorial Educational, Cultural and Charitable Trust, Gulbarga, India।